رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو نون مشدد اور میم مشدد کے متعلق اور اسی طرح سے میم ساکن کا ایک قاعدہ اور وہ تھا اخفاء شفوی، یہ دو چیزیں آپ کو بتلائی گئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ ایک ہے ادغام، جو میم ساکن کا میم میں ہوتا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے باب الادغام کے تحت آ چکا، اور دوسرا حکم جو ہے اور قاعدہ میم ساکن کا یہ ہے کہ اخفا کیا جائے، وہ بھی ایک حرف میں ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اسے بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ اور تیسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا اظہار شفوی۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ وَاحْذَرْ لَدَا وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي۔ فرما رہے ہیں کہ اور ضرور بالضرور باقی حرفوں کے پاس میم میں اظہار کرو۔ وَأَظْهِرَنْهَا اے اظہرن المیم، یعنی میم میں کیا کرو؟ اظہار کرو۔ کہاں؟ عند باقی الاحرف، باقی حرفوں کے پاس۔ وَاحْذَرْ لَدَا وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي، اور واو اور فا کے پاس اخفا کرنے سے بچو۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 چیزیں بتلائی۔ ایک چیز تو یہ بتلائی کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، میم اور با کے علاوہ اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو اظہار کرنا ہے، اظہار کا حکم دے رہے ہیں۔ میم کا بیان میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ باب ادغام کے تحت اس کا آ گیا، کیونکہ ادغامی مثلین میں اس کا بیان ہو چکا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آوے تو وہاں پر ادغام ہوتا، لہذا اس کا حکم وہاں گزر گیا۔ اور با کا حکم جو ہے ابھی یہاں پر گزرا، وَأَخْفِيَنْ الْمِيمَ إِن تَسْكُنْ بِغُنَّةٍ لَدَا بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ لَدَا کے اندر۔ تو میم اور با کے علاوہ باقی اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اس تیسرے شعر کے آخری مصرے میں، یعنی دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں واو اور فا کے پاس اخفا سے بچو، یعنی اخفا سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ چلیے، اظہرانہا کا ضمیر کا مرجع جیسا کہ آپ کو ترجمے سے واضح کیا گیا کہ میم ہے، یعنی میم ساکن میں اظہار کرو باقی حرفوں کے پاس۔ اب جو ہے باقی حروف سے مراد کیا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ باقی حروف سے مراد میم اور با کے علاوہ دیگر تمام حروف ہیں۔ تو جب جو ہے باقی حروف میں آپ نے کہا کہ اظہار کرو، تو ان باقی حرفوں کے اندر واو اور فا بھی تو شامل ہیں۔ تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو ہے دوسرے مصرے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واو اور فا سے جو ہے واو اور فا کے اندر جو ہے اخفا کرنے سے بچو، یعنی کہنے کا حاصل یہ کہ باقی الحروف میں واو اور فا بھی شامل ہیں، تو پھر ان کے متعلق اخفا سے تحذیر کا حکم، یعنی بچنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے اخفا سے بچنے کو؟ تو پہلا جواب اس کا یہ کہ واو اور فا شفوی ہونے کی وجہ سے میم کے مقارب ہیں۔ میم جو ہے شفوی ہے اور واو اور فا بھی کیا ہیں؟ یہ شفوی ہیں، تو یہ میم کے مقارب ہوئے۔ اس تقارب کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ میم ساکن کی ادائیگی میں
पूरी तरह से इतबाक़ शफ़तैन न हो, इतबाक़ शफ़तैन जो है पूरी तरह से न हो, तो होठों को इंज़िमाम शफ़तैन की तरफ उसके बाद वाव हो, और अगर फ़ा हो तो उसके मखरज की तरफ सबकत हो जाती। ऐसा मुमकिन था, यानी वाव और फ़ा जो है ये मीम का मुकारिब होने की वजह से ये तकारुब जो है इस बात की तरफ गलती करने का इम्कान बतलाता है कि जो है कभी ऐसा हो सकता है कि मीम साकिन के बाद वाव आए, तो मीम साकिन की अदायगी में पूरा इंतबाक़ शफ़तैन और इतबाक़ शफ़तैन न हो और होंठ जो है इंज़िमाम शफ़तैन की तरफ माइल हो जावे, और अगर वाव मीम साकिन के बाद फ़ा हो तो उसके मखरज की तरफ जो है सबकत हो जावे। तो इस जुमले से उसी गलती से बचाना मकसूद है। बहरहाल जवाब का हासिल ये है कि मीम साकिन के बाद वाव और फ़ा आने पर मीम और जो है वाव और फ़ा चूँकि आपस में एक दूसरे के मुकारिब हैं, तो इस तकारुब की वजह से गलती का इम्कान ये था कि मीम साकिन की अदायगी मुकम्मल तौर से न हो, यानी पूरा जो है इतबाक़ शफ़तैन न हो पाता, और होंठों को इंज़िमाम शफ़तैन की तरफ वाव की सूरत में और जो है फ़ा के मखरज की तरफ जो है वाव मीम साकिन के बाद फ़ा आने की सूरत में सबकत हो जाती। तो इस जो है जुमले से वहदर लदा वाविन वफ़ा अन तख्तफ़ी से उस गलती से बचाना मकसूद था। और दूसरा जवाब ये है कि इस जो है जुमले से उन लोगों की तरदीद मकसूद है जो लोग इस बात के कायल हैं कि मीम साकिन के बाद वाव और फ़ा आए तो इख्फा होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल जो है फुहश गलती है। ज़मीनी तौर पे आपको बतलाता चलूँ कि एक है कायदे बूफ या कायदे बौफ कहा जाता है, बा वाव फ़ा मुराद है, बूफ हो या बौफ हो। तो बौफ के कायदा का माहसल और खुलासा ये है कि बौफ के कायदे का मतलब ये है कि मीम साकिन के बाद बा वाव और फ़ा आए, बा वाव और फ़ा आए, ये है बौफ के कायदे का हासिल। अब क्या है, उसमें करते क्या है लोग, तो इसमें जो है तीन तरह की जमात हो गई है। बाज जो है तीनों में इख्फा करते हैं, यानी बा के मीम साकिन के बाद बा आए, मीम साकिन के बाद वाव आए, मीम साकिन के बाद फ़ा आए, तो तीनों में क्या करते हैं, इख्फा करते हैं। इसी तरह से इब्ने शुरैह ने किसाई रहमतुल्लाह अलैह से फ़ा से पहले और अल्लामा लुलुवई ने अबू अम्र से वाव से पहले इख्फा नकल किया है, जबकि ये दोनों शाज़ है, नकल किया है। बहरहाल तो यानी बाज़ हजरात क्या करते हैं, तीनों में इख्फा करते हैं, और बाज़ हजरात मसलन किसाई की तरफ ये बात मंसूब है, कहाँ तक सही है अल्लाह जाने, तो किसाई की तरफ से मंसूब ये किया जाता है कि मीम साकिन के बाद फ़ा आए तो इख्फा के कायल हैं वो। इसी तरह से अबू अम्र से के मुतल्लिक ये मशहूर है या लोगों ने नकल किया है कि वाव से पहले वो इख्फा करते हैं। बहरहाल ये तीनों हरफों में इख्फा करते हैं, बाद लोग तीनों में करते हैं, इमाम किसाई बा और फ़ा में करते हैं, बा में तो सभी करते हैं, और जो है अबू अम्र जो है वाव और बा में करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की तरदीद मकसूद थी। ऐसे ही बाद लोग जो है तीनों में इजहार करते हैं, चुनांचे अबू मोहम्मद मक्की, इब्न मुनादा और अयास मोहम्मद समरकंदी का मज़हब यही है कि तीनों में इजहार करते हैं। बहरहाल इजहार कोई जो है बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि अभी आपको पहले बतलाया जा चुका है कि मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो पसंदीदा कौल और जमहूर के यहाँ इजहार तो क्या कहते हैं, इख्फा किया जाता है गुन्ने के साथ, लेकिन बाज़ लोग जो है उसमें इजहार के कायल हैं। यही जो है बतलाया था अलल मुख्तार मिन अहलिल अदा कह करके कि मुख्तार और पसंदीदा कौल तो यही कि इख्फा किया जाए, लेकिन बाज़ लोग इजहार करते हैं। बहरहाल ये ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो लोग तीनों में इजहार करते हैं।
क्योंकि बा में इजहार साबित है और वा और फा में सब जमहूर के यहाँ इजहार है ही। तीसरा मजहब यह है कि बाज लोग कहते हैं कि मीम साकिन को इस तरह से अदा किया जाए, यानी वाव और फा आए, वाव और फा आए तो इस तरह से अदा किया जाए कि उसमें हरकत की बू पैदा हो जाए। बहरहाल अब जो है खुलासे के तौर पे आप ये समझिए कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने वहज़र लदा वाविन वफा अन तख्तफी जो कहा, बावजूद इसके कि बाकिल हुरूफ के अंदर वा और फा शामिल थे, तो उसकी वजह एक तो ये हुई कि कभी जो है वा और फा के मुकारिब होने की वजह से मीम साकिन की अदायगी में पूरा इतबाक़ शफ़तैन न हो पाता और वाव आने की सूरत में इंज़िमाम शफ़तैन की तरफ और फा आने की सूरत में उसके मखरज की तरफ जो है सबक़त हो जाती। इसलिए उस गलती से बचने के लिए ये बात कही है। और दूसरा जवाब यह है कि उन लोगों की तरदीद मकसूद है जो इस बात के कायल हैं कि मीम साकिन के बाद वाव और फा आए तो इख्फा करना चाहिए। बहरहाल तो इसके ज़िम्न में मैंने आपको बताया कि एक है बौफ का कायदा, तो बौफ के कायदे का हासिल ये है कि मीम साकिन के बाद बा वाव फा आए तो अब जो है बाज़ हजरात तीनों में इजहार करते हैं। ये कोई ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं है और ताज्जुब की बात भी नहीं है, क्योंकि वा और फा में इजहार होता ही है और बा में भी इजहार साबित है। जैसा कि अबू मोहम्मद मक्की बिन मुनादा, अयाज मोहम्मद समरकंदी वगैरह का मजहब है ये। और बाज़ हजरात क्या करते हैं, मीम साकिन के बाद अगर जो है वाव और फा आए तो इस तरह से मीम साकिन को अदा किया जाए कि मीम साकिन में हरकत पैदा हो, यानी कलकले की सूरत पैदा हो जाए। दो हो गए। तीसरा मैंने बतलाया था कि बाज लोग कहते हैं कि मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फा से पहले भी इख्फा कहते हैं बाज और बाज जो है वाव से पहले भी इख्फा कहते हैं, तो ये जो है इख्फा वाली बात गलत है। बहरहाल पहला कौल यानी तीनों में इख्फा करना ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से दूसरा कौल ये ज़ईफ है, यानी तीनों में इजहार करना। और तीसरा कौल जो मीम साकिन में हरकत की बात कहते हैं ये भी गलत है। तो गोया कि तीनों में इख्फा करना, और तीनों में इख्फा करने का मतलब ये है कि बा में तो इख्फा होता ही है, तो वा और फा में इख्फा करना ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से वा और फा के अंदर मीम साकिन को इस तरह से अदा करना उनके आने पर कि मीम साकिन में हरकत की बू पैदा हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता जिन लोगों ने कहा है कि तीनों में इजहार होगा ये ज़ईफ कौल है, और हासिल कलाम ये है कि अब जो है मीम साकिन के बाद बा आए तो पसंदीदा कौल के मुताबिक जो है वहाँ पर इख्फा किया जाएगा और वा और फा आने पर इजहार किया जाएगा। बहरहाल तो ये वजह थी कि वहज़र लदा वाविन वफा अन तख्तफी जो है बावजूद की वा और फा जो है बाकिल हुरूफ में शामिल थे, मुसन्निफ ने उसको बयान किया है। अब जो है खुलासे के तौर पर थोड़ी सी बात आप समझ लें कि मीम साकिन और मीम साकिन के तीन कायदे हैं, इदगाम, इख्फा और इजहार। मीम साकिन का इदगाम जो है उस वक्त होता है जबकि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए, जैसे इलैकुम मुरसलून, अमन वगैरह। मीम साकिन का इख्फा सिर्फ एक हर्फ में होता है जबकि मीम साकिन के बाद बा आए, जैसे अम बिही। इसका मतलब यह है इख्फा का कि मीम की अदायगी में होठों के खुश्की तरफ वाले तर हिस्से को नरमी से बंद करें ताकि मीम कमज़ोर हो जाए और कुछ हिस्सा गायब हो जाए। उसी कमज़ोर होने और छुपाने का नाम क्या है? इख्फा है। मीम साकिन का इजहार जो है मीम और बा के अलावा बाकी जो है 26 हर्फ आते हैं, जैसे अलम तरा, तो वहाँ पर जो है इजहार होता है। अब कोई तालिब इल्माना सवाल आपसे कर सकता है कि मीम साकिन के बाद
میم اور با کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں تو میم اور با کو نکال کر کے 27 حرف ہوتے ہیں، 26 کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد الف نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس لیے اسے شمار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ داخل ہی نہیں تھا، تو اس کو چھوڑ دیجئے، تو 26 حرف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم ساکن کے بعد جو ہے میم اور با کے علاوہ باقی 26 حرفوں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے میم ساکن کے ادغام کو ذکر نہیں کیا یہاں پر، وہ اس لیے کہ اس کا بیان جو ہے باب الادغام میں آ چکا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر لفظ اظہار اور اخفاء آیا ہے، وَأَخْفِيًا وَأَظْهِرَنْهَا، تو اظہار اور اخفاء کا لغوی اور اصطلاحی معنی جان لیتے ہیں، تازہ ہو جائے گا۔ اظہار کے لغوی معنی آتے ہیں واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ اصطلاحی تعریف تو ہوتی ہے اس کی، اظہار مطلق کی تعریف ہوتی ہے اخراج کل حرف من مخرجہ، یا جو یوں کہا جاتا ہے اداء الحروف کما اقتضی ذاتہ، یعنی حرف کو اس طرح سے ادا کرنا جیسا کہ اس کی ذات تقاضا کرتی ہے، اور ہر حرف جو ہے اپنی ذات میں مستقل ہے، لہذا بغیر کسی تبدیلی کے اس کو ادا کرنا، اس کو کہا جائے گا اظہار۔ البتہ یہاں پر جو اظہار کی تعریف ہوگی، چونکہ میم ساکن کا اظہار ہے تو اس کا جو ہے اظہار یہ ہوگا اخراج المیم، یعنی میم کو ادا کرنا، من مخرجہ، اس کے مخرج سے، من غیر غنۃ، بغیر کسی غننے کے، فی المظہر، یعنی میم مظہر کے اندر، تو یہ جو ہے ہو جائے گا کہ میم ساکن کو بغیر کسی غننے کے، یعنی غنہ زائدہ، مراد جو ہے غنہ آنی نہیں بلکہ غنہ زمانی، بغیر غننے کے ادا کرنا۔ ایسے اظہار کی تعریف اداء الحروف یا حرفی کما اقتضی ذاتہ، حرف کو اس طرح ادا کرنا جیسا اس کی ذات تقاضا کرتی ہے۔ اور یہاں پر میم ساکن کے اظہار کی تعریف یہ ہوگی کہ اخراج المیم من مخرجہ من غیر غنۃ زائدۃ، بغیر غنہ زائدہ کے ادا کرنا۔ ادغام پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا بیان لغوی معنی جو ہے چھپانا، داخل کرنا۔ اصطلاحی تعریف کسی حرف ساکن کو اس طرح ادا کرنا کہ بقائے غنہ کے ساتھ وہ بین الاظہار والادغام بغیر تشدید کے ادا ہو، یعنی اخفاء کہتے ہیں ہی حالت بین الاظہار والادغام، یعنی اخفاء نام ہے اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ کسی حرف کو ادا کرنا۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے، حرف اپنے مخرج اصلی سے ادا ہوتا ہے، بعد والے حرف سے بالکل جو ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور ادغام کے اندر ہوتا ہے کہ پہلا حرف جو ہے دوسرے حرف میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے حرف میں یہ داخل ہو کر کے گویا کہ اس کے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن اخفاء میں کیا ہوتا ہے، اخفاء جو ہے اپنے مخرج اصلی سے بھی ادا نہیں ہوگا اور بعد والے حرف میں داخل بھی نہیں ہوگا، اس لیے اخفاء کی تعریف، جامع تعریف جو کی جاتی ہے وہ تعریف یہ ہے الاخفاء ہی حالت بین الاظہار والادغام۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے میم ساکن کا بیان ختم ہوا، اور اس باب میں جو ہے نون مشدد، میم مشدد اور میم ساکن کا بیان ہوا تھا۔ نون مشدد اور میم مشدد کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ نون اور میم کی تشدید خواہ کیسی بھی ہو، جس طرح بھی جو ہے تشدید آئے، وہ نون اور میم جو ہے بہرحال مشدد ہوں گے تو ان میں جو ہے غنہ زائدہ یعنی غنہ زمانی کے ساتھ پڑھے جائیں گے، خواہ وہ نون اور میم کی تشدید جو ہے اصلی اور وضعی ہو یا جو ہے ادغامی ہو۔ اور دوسرا قاعدہ میم ساکن کا بتلایا کہ اس میں اخفاء ہوگا جبکہ میم ساکن کے بعد با آئے، اور وہ بھی جو اخفاء کیسا ہو رہا ہے، علی المختار من اہل الادا،
जमहूर और अहले अदा के पसंदीदा कौल के मुताबिक मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो वहाँ पर इख्फाई होता है। इसका मतलब ये है कि बाज़ लोग इजहार के भी कायल हैं, जैसा कि अभी आपको बतलाया था इजहार भी बाज़ लोग करते हैं, लेकिन उस मीम के लिए ज़रूरी है कि मीम असली हो, मीम मक़लूबा ना हो। जैसे मीम बाद में नून को मीम से बदला जाता है, तो यहाँ पर उनके यहाँ भी इजहार नहीं होगा जो लोग मीम साकिन के बाद बा आने पर इजहार के कायल हैं। फिर उसके बाद तीसरा कायदा बतलाया वह अज़हिरन्हा इंद बाक़िल हरफ़ी कि मीम साकिन का जो है बाकी हरफों में यानी मीम और बा के अलावा बाकी हरफों में जो है इजहार किया जाएगा, इसको इजहार शफ़वी कहते हैं। और फिर जो है तहज़ीर मुसन्निफ़ ने जो है बयान की कि वाव और फ़ा के पास जो है इख्फ़ा करने से बचा जाए। उसकी वजह जो है आपको बतलाई गई कि उसकी दो वजह है क्योंकि मीम जो है वाव और फ़ा का मुकारिब है, तो कहीं उसकी अदायगी में गलती न पेश आ जावे और उसकी अदायगी मुकम्मल तौर से ना होवे, इसलिए जो है उसकी तरफ इशारा किया। और दूसरी ये है कि उन लोगों की तरदीद मकसूद थी जो है मीम साकिन के बाद वाव और फ़ा में इजहार क्या कहते हैं इख्फा के कायल हैं, या ये कि जो है वो उन लोगों की तरदीद मकसूद थी जो मीम साकिन, असल तो इन्हीं की तरदीद मकसूद है जो लोग मीम साकिन के बाद वा और फ़ा आने पर इख्फा के कायल हैं। अलबत्ता ज़िम्नन मैंने आपको बतलाया कि बाज़ लोग ये भी करते हैं कि मीम साकिन के बाद वा और फ़ा आने पर कहते हैं कि मीम साकिन को इस तरह से अदा किया जाए कि मीम साकिन में हरकत की बू आ जाए। ये बिल्कुल गलत है, फोश गलती है, इसलिए इसको बहुत सी किताबों में बयान भी नहीं किया जाता। बहरहाल ये सब बातें थी मीम साकिन के कवायद के ताल्लुक़ से। अब इसी पे ये सबक ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।